راہگیر شہید ہوئی. 550 کے قریب ہمارے جرنلسٹ ہیں. 40% پچھلے 4 سالوں میں جب پچھلی حکومت تھی وہ بے روزگار ہو گئے اور تقریباً جو ہے ان کی تنخواہیں بھی کافی کم ہیں. میڈیا کے واجبات بھی کافی سارے رہتے ہیں. اس حوالے سے یہاں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. پشاور پریس کلب جو ہے اپنے ممبران کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے. ابھی تک ہم کوئی 4.25 کروڑ کی ویلفیئر کر چکے ہیں اپنے ممبران کے لیے. جن کی تنخواہیں کم ہے، بے روزگار ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں سب کی مدد کر رہے ہیں. اور اس میں مرکزی حکومت کا کوئی ایک آنا نہیں شامل. اگر ہوتا تو میرا خیال میں بہتر تھا. حالانکہ ہم نے یہاں صوبائی حکومت کے خلاف کافی ہماری آج پالیسی تھی. جو بھی حکومت آتی جائے ہمارا ایک تنقید کا ہمارا وہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کافی ہیلپ کی. دوسری بات یہ کہ ہم خود کوشش کرتے ہیں میڈیکل ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے ہم کافی کام کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس حوالے سے اگر آپ کے کہیں کچھ کر سکتی ہیں، آپ ہمارے جرنلسٹوں کے لیے تو ہماری بہت مشکور ہوں گے آپ کے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج آپ پشاور پریس کلب میں آئی ہیں تو آپ اپنے بات کریں. آخر میں اگر کوشچن آنسر ہوگا تو اسی طرح ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، اس کو ترتیب سے آپ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ. صاحبہ یہ آپ جو ناز پیش کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد عزیز صاحب، میرے بہت ہی محترم بھائی پشاور پریس کلب، عرفان خان صاحب جنرل سیکرٹری پشاور پریس کلب، اور یہاں جتنے اس وقت بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم. آج میں امین مقام صاحب کو دے کر آئی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی گلا موجود ہے. اور جس طرح ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ مجھے آنا چاہیے تھا، بالکل آپ کا گلا بجا ہے، مجھے بالکل آنا چاہیے تھا. اور جب میں پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا تھا اسی لڑکے کا، تو میں پشاور میرے خیال میں پہلے مہینے ہی آئی تھی اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہ ایک 14 ماہ کا جو دورانیہ ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا. اتنا زیادہ کام. اور اس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، لوگ پچھلے وزیر اعظم کے لیے کہتے تھے کہ وہ کہتا تھا رونا نہیں اور گھبرانا نہیں، اور یہ وزیر اعظم کہتے ہیں سونا نہیں، اور صرف کام کام اور کام. اور میں آپ سب کے سامنے آج یہاں پشاور پریس کلب میں آئی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں اس سے پہلے ریڈیو پاکستان میں جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو 9 مئی کو جلایا گیا، اور اس کے بعد چابی کے اسٹوڈیو کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو جلایا گیا، اس کی رینوویشن کی سنگ بنیاد رکھ کر آئی ہوں. اس کا کام شروع ہو گیا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے میں ابھی ہو کر آئی ہوں، جہاں ہم نے جو ایک بہت ہی پرانا درینا مطالبہ تھا، ایک خواہش تھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کو 2 سے 3 گھنٹے سے بڑھایا جائے. تو نہ صرف اس کو بڑھایا ہے بلکہ 24 گھنٹے کے لیے پشاور سینٹر سے پی ٹی وی کی جو پشاور کی اور علاقائی زبان میں جو براڈ کاسٹنگ ہے اس کو 24 گھنٹے کے لیے شروع کیا گیا ہے. آپ سب وہ ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے. اور جس طرح کی ثقافت، جس طرح کا ہیریٹیج، جس طرح کا کلچر، جس طرح کی تہذیب خیبر پختونخوا کی ہے، اس تمام کو اسکرین کے اوپر سے جتنے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، خیبر پختونخوا سے جو لوگ باہر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی سیٹلائٹ کے اوپر اس نشریات کو اسٹارٹ کیا گیا ہے، تاکہ UAE میں بیٹھے ہوئے، قطر میں بیٹھے ہوئے، سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقے سے، وہ اسکرین کے اوپر پی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر جو نشریات ہیں تمام علاقائی زبانوں میں، تمام ڈائلیکٹس کے اندر یہ نشریات شروع کی گئی ہیں، جہاں یہاں کے آرٹسٹ کو، یہاں کے پروڈیوسرس کو، یہاں کے جرنلسٹ کو وہ مواقع ملیں گے کہ وہ پی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے پاکستان کی عوام تک اپنی ہیریٹیج، اپنے کلچر، اپنے موقف کو پہنچائیں. تو یہ آپ سب کے لیے بھی بہت ہی مبارک دن ہے. آپ سب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں خیبر پختونخوا کے
खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2013 से लेकर 2018 तक जो मंसूबे थे उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा, मैं प्रेस क्लब को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हमने 4 साल देखा कि यहाँ बहुत बुलंद दावे किए गए, कहा गया कि इसको मतलब स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, दूसरे इंटरनेशनल ममालिक से मिलाया गया। 4 साल एहतसाब कमीशन को पेशावर में ताला लगाया गया, दूसरों को चोर के इल्ज़ाम लगाते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ बनाने की, कोई अस्पताल बनाने के मुझे तो नज़र नहीं आए। DRT पेशावर करप्शन केस को सुप्रीम कोर्ट के स्टे देकर 4 साल उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जो जस्टिस ऑन व्हील्स की बस थी वो 2 माह के बाद उसके टायर पंचर हो गए और जो तरक्याती मंसूबे थे 350 डैम बनाने थे वो भी आप लोगों के सामने है, मुझे तो नज़र नहीं आया। हाँ, आवाम ज़रूर डैम को बनी उन नारों के ज़रिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पिछली हुकूमत को 9 मई के वाक़े में जो यहाँ फोर्ट था उसको जलाया, स्कूल जलाया, अस्पताल जलाए, एम्बुलेंस जलाई, शोहदा के जो यादगारें थीं, उनकी एम्बुलेंस थी, उनकी बेहुरमती की गई, उनको तोड़ा गया। इसलिए वोट नहीं दिया था पाकिस्तान की अवाम ने। पाकिस्तान की अवाम ने मुल्क को तामीर करने के लिए वोट दिया था, मुल्क को जलाने के लिए वोट नहीं दिया। और उसके ऊपर ये सवाल किया जाए कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ है, तो 9 मई का फ़ायदा मैंने कल भी कहा था कि फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है और 9 मई की साजिश को नाकाम बनाने का फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को हुआ। PTV को जलाने वालों ने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया, जितनी गाड़ियाँ जलाई हैं, जो आर्काइव जलाए हैं, जो चांद का पहाड़ जलाया है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दी है कि इसको भी एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाए ताकि हमेशा ये बात याद रहे कि किस तरह रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, जिन्होंने PTV के ऊपर हमला किया। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक शख्स है जो हर वक्त अपने झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए, साजिश के ज़रिए, फितने के ज़रिए हर वक्त उसके साजिश के अंदर मसरूफ़ रहता है। साइफर ले आया और लहरा दिया और कहा इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक हुकूमत पहली दफ़ा आईनी तरीके से किसी भी वज़ीर आज़म को वोट के ज़रिए से पार्लियामेंट से हटाया गया। उसको साइफर लहरा कर ये झूठ बोला गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका की साजिश है। वो साजिश बाजवा साहब से होती थी, वो मोहसिन नकवी के ऊपर ख़त्म हो गई। उसके बाद आज जब साइफर की इन्वेस्टिगेशन जारी है, वही शख्स कहता है कि साइफर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। जिस वक्त फॉरेन फंडिंग का केस 2014 में शुरू हुआ, हर पाकिस्तान की अदालत में गया कि इसको रोक दिया जाए, इस पर इन्वेस्टिगेशन न की जाए, ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। हर अदालत में आज दरखास्तें दे रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के केस को, उसके ट्रायल को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड उसमें कहा जाता है कि मुझे क्या पता बंद लिफाफे में कैबिनेट के अंदर क्या आया था, मैंने तो देखा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं है। और 190 मिलियन पाउंड जो है वो उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई सर नहीं, कोई उसका पैर नहीं। तोशाखाना की चोरी में हर अदालत में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, इसको रोक दिया जाए। मेरे MS को पता होगा कि गिफ्ट कहाँ से आए, पर तुमने गिफ्ट दिए, तुमने गिफ्ट भेजे, तुमने खाना काबा के हक वाली घड़ी भेजी, तो MS से क्या पूछे। और हर अदालत में ये कहता है और इस वक्त दरखास्त देते हैं कि जी इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। दूसरी तरफ जिन को चोर कहा, जिन पे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने पाकिस्तान की हर अदालत की, चाहे वो NAB की अदालत हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन सब में अपने जवाब दिए। रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने जवाब दिए। पाकिस्तान की आवाम ने सब कुछ देखा क्योंकि हमारे पास जवाब थे। हमने बाल्टी, डब्बे, कनस्तर और डस्टबिन का सहारा लेते हुए हमने अदालतों के अंदर से भागने की कोशिश नहीं की। हम सर उठाकर मुझे याद है कि ये प्रेस क्लब में आई थी ऑपोजिशन के दिनों में, मैं हर तकरीबन प्रेस क्लब में गई थी और ये प्रेस क्लब ही हमें वो जगह फराहम करता था जहाँ हम आज़ादी के साथ अपनी बात कर सकते हैं। जिस वक्त कैमरे बंद थे, सहाफ़ियों के पेट में गोलियाँ लगती थी, सहाफ़ियों की हड्डियाँ तोड़ी जाती थी, उनके घरों में घुसकर उनकी फसलियाँ तोड़ी जाती थी, उनकी बच्चियों के घर के बाद से उनको अगवा किया जाता था। और आज ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म, आज मैं आपके तवज्जुह से ये बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं आज सफ़र में थी तो मैं खबर देख नहीं सकती। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर लगाई जिसके अंदर कहा गया कि जो आज़म चौधरी साहब हैं, उनको लाहौर जब IMF की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में गवर्नर हाउस में,
तो उसके बाद उनको PTV की मुलाजमत से हटा दिया गया है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर लगाई, फिर फ्राइडे टाइम्स ने लगाई और अब उसको मीडिया ने उठाया हुआ। सबसे पहले तो मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं प्रिंट मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं डिजिटल मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि कोई खबर लगाते वक्त ये जर्नलिज्म का प्रिंसिपल है, ये ईथॉस है कि आपने कोई खबर लगाने से पहले दोनों मौक़िफ़ लेने हैं और दोनों मौक़िफ़ लेने के बाद ही आप अपनी स्टोरी को फाइल कर सकते हैं। उसके बगैर स्टोरी नामुकम्मल होती है, उसके बगैर ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बगैर ये फेक न्यूज़ के ज़मरे में आता है। और ये वो दौर नहीं है जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को प्रेडेटर कहा जाए मीडिया का, जिस वक्त इरफान सदीकी जैसे जर्नलिस्ट के कलम को तोड़कर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिस वक्त मीर शकील रहमान साहब को वो केस जो आज जिसमें से नवाज शरीफ साहब बरी हुए मेरिट के ऊपर कि जी प्लॉट दे दिया था और जेल में डाल दो, नैब की कस्टडी में डाल दो। अजीज चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविजन के एम्प्लॉय नहीं हैं, न कभी रहे हैं, और उनको किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टेलीविजन का उनके पास नहीं है। वो अगर मुझे आज़म चौधरी साहब मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, मैं पिछले हफ्ते उनके लाहौर प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात करके आई हूँ, मैं पिछले 4 साल सबको जानती हूँ जिनके क्या क्या व्यूज़ हैं उनके, उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म की प्रेस क्लब गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था, क्योंकि हम वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमत नहीं है जहाँ फहरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, किस जर्नलिस्ट को बुलाना है, किस जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना। एक पूरी स्क्रीनिंग होती थी और फिर अपने माउथ पीसेस को इंस्टॉल किया जाता था, जिसमें से बहुत सी प्रॉक्सी जिस वक्त मुल्क के बाहर बैठी मुल्क दुश्मनी कर रही थी। आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी का सहारा लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलाई जा सकती। आज़म चौधरी साहब पूल ऑफ जो एनालिस्ट हैं, हमें अगर आज़म चौधरी साहब की व्यूज़ से कोई मसला होता, अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर एक फॉरेन एजेंट, एक मीडिया प्रेडेटर बैठा होता तो वो गवर्नर हाउस में उस वक्त वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ न किए जाते और वज़ीर इत्तलाक़ की तरफ से उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि हमने देखा था कि उस वक्त का वज़ीर इत्तलाक़ सहाफ़ियों के मुँह पर थप्पड़ और चपेड़े मारता था। हमें पता था जिस वक्त सहाफ़ी जो वज़ीर इत्तलाक़ थे वो किस तरह सहाफ़ियों की तज़हीक करते थे, उनकी तज़लील करते थे, और एक स्क्रीनिंग के ज़रिए सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता था। स्क्रीनिंग के ज़रिए और उसके ज़रिए लिस्टों को स्क्रीन करके उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। और अभी भी आज़म चौधरी साहब मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं, उनके व्यूज़ जो मर्ज़ी हैं, ये एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको झूठ फैलाने की कोई कानून, कोई फ्रीडम, कोई मीडिया की इजाज़त नहीं देती। और आज़म चौधरी साहब PTV के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा है, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज तक वो उस पूल का हिस्सा है। और सहाफ़ियों को बुलाकर PTV की नशरियात के ऊपर ये पहली दफ़ा होता है इस तरह कि उनको बुलाकर अपने व्यूज़ की इजाज़त दी जाए, और वो लोग जो अपना डिफरेंट व्यू रखते हो गवर्नमेंट से, लेकिन उनको इजाज़त दी जाए, और वो आज भी उस इशू बेस्ड स्कूल ऑफ एनालिस्ट का पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा है। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारे दिल इतने छोटे नहीं हैं, हम अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए, रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अपोजिशन को पिछले अदवार में सलाखों के पीछे डाल के, सजाए मौत की चक्कियों में डाल के, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अस्पतालों से घसीट कर जेलों में डाला गया, हम वो लोग नहीं हैं। हम बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, हम सहाफ़ियों की इज्जत करना जानते हैं, हम बहनों की इज्जत करना चाहते हैं, हम इन मनसब जिनके ऊपर आज अल्लाह ताला ने हमें बिठाया, हम इनकी इज्जत करना जानते हैं। हम बिल्कुल पर्सनलाइज होकर नहीं। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि जब इस किस्म की आप स्टोरी करें, जब इस किस्म की पाकिस्तान टेलीविजन ने किसी मीडिया का नाम लेकर, किसी चैनल का नाम लेकर आज तक उनके बारे में गलत खबर नहीं छापी, कभी आप मुझे बताएंगे किसी पाकिस्तान टेलीविजन ने किसी चैनल के बारे में खबर छापी हो? आज हर चैनल पाकिस्तान टेलीविजन की खबर चला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, बगैर पाकिस्तान टेलीविजन का व्यू लिए। ये किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी में आता है? ये तो जर्नलिज्म के भी अगेंस्ट है कि आप किसी का व्यू लिए बगैर स्टोरी को करें और फिर सारे चैनल पाकिस्तान टेलीविजन का नाम लगाकर उस झूठी खबर को चलाएं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने वो 4 साल का दौर जिस वक्त हमारे फ्रीडम ऑफ
एक्सप्रेशन का कलम होता था, जिस वक्त हमारे चलते प्रोग्राम्स को बंद किया था, जिस वक्त हमारे बारे में कोई सहाफ़ी लिखता था तो उसका कलम तोड़ दिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया जाता था। हमने वो दौर सहा है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम हो कि किसी को भी अपनी बात करने का मौका न मिले। फ्रंट रो के ऊपर आजम चौधरी साहब उस दिन बैठे हुए थे, वजीर आजम का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी छोटी बात, इतना झूठ। और उसके बाद हमने अपनी बेटियों के साथ हर रोज की बुनियाद के ऊपर अपने एहतसाब का जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास जवाब थे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने आप को आइन के सामने पेश किया, कानून के सामने पेश किया, हर इल्जाम का जवाब दिया। आज कोई इल्जाम का जवाब देने का जवाब नहीं, और उसके ऊपर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, बाहर बैठी हुई प्रॉक्सीज के खिलाफ से इंसाइट करके वायलेंस अपने मुल्क के अंदर साजिश करते हैं। ये पाकिस्तानियत है। हर वो शख्स जो इसमें मुलविस है वो पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिसने 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है वो पाकिस्तान की कौम का, उन शोहदा का मुजरिम है। वो इमरान खान फॉरेन एजेंट है, वो मास्टर माइंड है 9 मई का। और आज 9 मई की इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं होना नहीं चाहिए। और वहां वो जो लोग मुलविस हैं वो आज ह्यूमन राइट्स और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स की बात करते हैं, जब मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद, जब इलेक्शन होगा और हमारी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत खत्म करने के बाद इलेक्शन में जाएगी, तो अवाम के पास क्या लेकर जाओगे? अवाम के पास 9 मई का सानिया लेकर जाओगे? अवाम के पास 60 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया लेकर जाओगे? अवाम के पास सीपेक को मुंजमद करके रोक के प्रोजेक्ट बंद कर दिया लेकर जाओगे? आज शहबाज शरीफ वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा में लैपटॉप बेचने आता है, क्यों नहीं आ सका उस वक्त का वजीर आजम मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी, पेशावर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने, फाटा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने, फाटा के लोगों के अंदर लैपटॉप